Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I would like to thank Mr. Shaukat Rizwan Saab, who is the most prestigious and respected and honorable principal of our Qaid Shapur, who initiated the program to educate the student through multimedia, to teach the student through using audio-visual aids. And today it is the first day we are going to introduce and going to start through multimedia project, and today we are going to reading the chapter number 12, class 10th. The name of the chapter is population growth and world food supplies. The question: what do you understand the term population, Usman? What do you understand that what is population and what is overpopulation? Shawal, speak on Urdu. You can use Urdu language. Overpopulation is not आबादी पर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाना है। वसाइल कमी हो जाती है इससे। और जो खुराक है वो मुसाविर बल्कि अगर बात होती है और पहले का काम इसकी आबादी की जरूरत से ज्यादा बढ़ जानी चाहिए और ये एक बहुत बड़ा मसला है। Very good. Thank you very much. Okay. Okay, the first paragraph is: the alarming and incessant growth of population is causing serious economic problems in almost all continents. Great pressure is being placed on arable land, water, energy, and biological resources. As the world population grows, the food problem will become increasingly severe. The most vulnerable will be population in developing countries. The per capita availability of food grains has been declining for the past 25 years. Certainly, with 250,000 people being added to the world population each day, the need for grains and all other food will reach unprecedented levels. Below, world population and its growth trends are given. Okay, these are the numbers which were from the 1852 onwards. And number 2, there are about 250,000 people added to the planet per day. This exponential growth is mostly happening in developing nations. More than 99% of the world food supply comes from the land, while less than 1% is from oceans and other aquatic habitats. The continued production of an adequate food supply is directly dependent on ample fertile land, fresh water, and energy. As the human population grows, the requirements for these resources also grow. Even if these resources are never depleted on a per capita basis, they will decline significantly because they must be divided among more people. At present, fertile agricultural land is being lost at an alarming rate. The shortage of productive fertile land combined with decreasing land productivity is the major cause of current food shortage. बंद करो वीडियो पे एकदम. The alarming and incessant growth of population is causing serious economic problem in almost all continents. अब जो कॉन्टिनेंट है, जो हमारे पास समझ लें एशिया है हमारे पास, तो बराज़म जिसको आप बोलते हैं, तमाम बराज़म के ऊपर ये मुआशी मसला जो है, इसकी वजह क्या है? इंसेसेंट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, लगातार मुसलसल आबादी का जो बढ़ना है वो खतरनाक हद तक है, वो एक खतरा है. ग्रेट प्रेशर इज बीइंग प्लेस्ड, अब बहुत ही दबाव का शिकार है कौन सी चीज? ऑन एरेबल लैंड, जो काश्तकारी वाली जमीन है वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है. वाटर के ऊपर बहुत ज्यादा, जब जाहिर है जमीन को ज्यादा प्रोडक्शन उससे लेनी है तो वाटर की भी ज्यादा जरूरत पड़नी है. उसके बाद एनर्जी की, तवानाई की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है. जिस तरह लाइट का प्रॉब्लम लोड शेडिंग का बना हुआ है, तो ये एनर्जी होती है, एनर्जी का बहुत ज्यादा इसके ऊपर प्रेशर है. बायोलॉजिकल रिसोर्स और जो हयातियाती हमारे पास वसाइल हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा
प्रेशर डेवलप हो चुका है। किसकी वजह से? पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से। एज द वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रो, और जैसे जैसे ये बढ़ती चली जाती है, होता क्या है? द फूड प्रॉब्लम विल बिकम इंक्रीजिंगली सीवियर। तो क्या होता है कि खुराक का भी मसला जो है वो भी बढ़ने लग जाता है, तेजी के साथ बढ़ता है, क्योंकि आबादी जिस तरीके के साथ बढ़नी है हमारे पास, तो जाहिर है उनको खाना देने के लिए भी खुराक की तो हमें इतनी ज्यादा जरूरत पड़नी है। तो क्या कहता है वो? द मोस्ट वल्नरेबल विल बी पॉपुलेशन। तो जो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है पॉपुलेशन के बढ़ने की इन डेवलपिंग कंट्रीज, के ये डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर चीज जो है वो ज्यादा बढ़ रही है। तरक्की याफ्ता के अलावा तरक्की पजीर जो है उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है। द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, अब फी कस जो फूड की सप्लाई है, दस्तयाबी है, ग्रेन्स हैज बीन डिक्लाइनिंग, तो ये कम पड़ती जा रही है फॉर द पास्ट 25 ईयर्स, पिछले 25 सालों से। सडनली विद अ 250,000 पीपल, 2.5 लाख, तकरीबन 250,000 जो होता है, 10 लाख का मिलियन होता है ना, तो हमारे पास 2.5 लाख जो है लोग जो हैं बीइंग एडेड टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन ईच डे, हर रोज बढ़ रहे हैं। कितने लाख लोग पर डे बढ़ रहे हैं? 2.5 लाख लोग हमारे पास डेली जो है वो पैदा हो रहे हैं और वो पॉपुलेशन में इजाफा कर रहे हैं। द नीड फॉर ग्रेन्स एंड ऑल अदर फूड विल रीच अनप्रेसिडेंटेड लेवल, और ये भी एक जो आज तक ऐसा नहीं हुआ उस सतह तक पहुंच चुकी है। हमारे पास जो फूड की शॉर्टेज है वो भी ऐसे ही डिक्लाइन हो रही है हमारे पास। बिलो, अब नीचे क्या है वो? वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड इट्स ग्रोथ ट्रेंड्स आर गिवन। तो कैसे आबादी बढ़ रही है, कैसे हमारे पास ये अदाद शुमार आए हैं कि हमें पता चला है कि हमारी आबादी जो है वो अनप्रेसिडेंटेड लेवल तक जो है वो बढ़ रही है। अब वो कहता है कि 10,000 ईयर्स अगो, कि 10,000 साल पहले ये आबादी कितनी थी? 10 मिलियन थी सिर्फ। बाय 1850, अब 1850 तक की ये आबादी 1 बिलियन हो गई, मतलब बढ़ती जा रही है। 80 more years to reach 2 billion in 1930। अब 1850 से लेकर 1930 तक देखें ना, पहले 1 बिलियन थी 1850 तक, अब क्या है कि ये 2 बिलियन जो है 1930 तक हुई है। उसके बाद 45 years to reach, 45 सालों के बाद इट डबल अगेन द 4 बिलियन in 1975। तो 1975 में क्या हुआ कि ये आबादी जो है 4 बिलियन तक पहुंच गई। 12 years to reach 5 billion, अब फिर 12 सालों के बाद 1 बिलियन फिर बढ़ गया। उसके बाद 6 बिलियन इन 1999, से बिलियन जो है वो 1999 में हो गई। उसके बाद बाय द ईयर 2020, अब 2020 तक क्या हुआ? देयर विल बी 8 बिलियन, ये फिगर पहले के हैं, तो क्या वो कहता है कि 2020 तक ये 8 बिलियन तक पहुंच जाएगी। और जो रात को मैंने फिगर्स चेक किए हैं कि नाउ मोर देन 8 बिलियन आर, कि अब 8 बिलियन तक ये पहुंच चुकी है। और आफ्टर दिस सेंचुरी इट विल बी रीच 10 बिलियन। अब जब ये सदी खत्म होगी हमारे पास, 21st सेंचुरी जब खत्म होगी, तो ये हमारे पास कितनी हो जाएगी आबादी? 10 बिलियन हो जाएगी। ठीक है, नीचे हमारे पास देयर आर अबाउट 250,000, अब क्या 2.5 लाख तकरीबन लोग जो हैं एडेड टू द प्लेनेट पर डे, लोग जो हैं वो ऐड हो रहे हैं, उनमें इजाफा हो रहा है आबादी का। दिस पोटेंशियल ग्रोथ इज मोस्टली हैपनिंग इन डेवलपिंग नेशंस। तो ये सारा कुछ कहां पे हो रहा है? तरक्की पजीर ममालिक के अंदर हो रहा है। मोर देन 99% ऑफ द वर्ल्ड फूड सप्लाई कम फ्रॉम द लैंड। अब 99% जो खुराक हमें आ रही है वो कहां से आ रही है? लैंड से आ रही है। वाइल लेस देन 1%, अब 1% से भी कम जो है इज फ्रॉम ओशन, हमें समुद्रों से आ रही है, एंड अदर एक्वेटिक हैबिटेट्स। तो दूसरे आबी जराए से हमें 1% जो है ओशन से आ रही है, और बाकी भी जो है वो हमें आबी जराए से हासिल हो रही है। द कॉन्टिन्यूड प्रोडक्शन, अब मुसलसल जो इसकी पैदावार है ऑफ एन एडिक्वेट फूड सप्लाई, जो एक मुनासिब सी फूड की दस्तयाबी है, इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एम्पल फर्टाइल लैंड। तो हमें ये काश्तकारी के ऊपर जो है इसका इन्हिसार है, फ्रेश वाटर के ऊपर, फर्टाइल लैंड के ऊपर, एंड एनर्जी के ऊपर इसका इन्हिसार है। एज द ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोज, जैसे ये आबादी अब बढ़ती है, द रिक्वायरमेंट फॉर दीज रिसोर्सेज आल्सो ग्रो। तो क्या होता है कि वसाइल में भी इतना ही इजाफा होता है। जाहिर है जितने लोग बढ़ेंगे इतनी ज्यादा खुराक खाएंगे, इतनी डिमांड भी बढ़ेगी, तो फिर इतनी सप्लाई भी बढ़ानी होगी। जब सप्लाई बढ़ानी होगी
तो प्रेशर किसके ऊपर आ रहा है? लैंड के ऊपर आ रहा है, साथ में आपके वाटर के ऊपर आ रहा है, और साथ में आपके एनर्जी के ऊपर आ रहा है। तभी तो एनर्जी क्राइसिस जो है हमारे पास ज्यादा हुआ है। इवन इफ दीज रिसोर्सेज आर नेवर डिप्लीटेड, अगर ये रिसोर्सेज कम नहीं होते ऑन अ पर कैपिटा बेसिस, फी का के ऊपर, दे विल डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली। अब अगर ये पूरे नहीं होते जो हम दे रहे हैं, प्रोडक्शन दे रहे हैं लोगों को, अगर ये कम नहीं होती, कम कैसे होनी है? आबादी कम होनी है तो ये कम होनी है। अगर ये कम नहीं होते तो फिर वो कहता है कि ये डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे, ये कम होना स्टार्ट हो जाएंगे, बिकॉज दे मस्ट बी डिवाइडेड अमंग मोर पीपल, क्योंकि हमें इनको ज्यादा लोगों में तकसीम करना होगा ना, तब ये इसलिए कम हो रहे हैं एट प्रेजेंट। और अब क्या सूरत हाल है? फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड इज बीइंग लॉस्ट एन अलार्मिंग रेट। तो जो फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड है हमारे पास काश्तकारी के लिए, जो हमारे पास ज़रख़े जमीन है, वो भी कम पड़ रही है, खतरनाक हद तक है। द शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्टिव फर्टाइल लैंड, अब इसकी जो शॉर्टेज है, इसकी जो कमी है, कंबाइंड विद, जुड़ी हुई है विद डिक्रीजिंग लैंड प्रोडक्टिविटी, तो जो उससे पैदावार हमें आ रही है उसके साथ, इज द मेजर कॉज ऑफ करंट फूड शॉर्टेज, और इसकी वजह से जो है वो शॉर्टेज ऑफ फूड हमारे पास हो रहा है। ठीक है जी, थैंक यू।